ठीक है. So what we are going to study first is, let's say, excitation and absorption of energy. So I have told you that since we have seen, let's say, energy diagram, so I am going to write energy of, let's say, cell. So this is nothing but n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5, and n equals to infinite. And at infinite, energy infinite is 0. What is the energy over here? So that is minus 13.6, right? Z square by n square. This is the formula, right? So we are going to write, let's say for hydrogen, we want to write, right? You know, energy diagram. Over here, we can write for hydrogen. So what will happen? This is, again, I am drawing this energy diagram just to, let's say, revise it. Minus 13.6 electron. What is going to come here? So minus 13.6. Z square की value 1 है, n square की value 4 है. So that is minus 3.4 electron. And it is going to be minus 13.6 by 9. So that is minus 1.51 electron. And that is minus 13.6 by 16. So that is minus 0.85 electron. So you can see the energy value is increasing, है ना. तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना. नेगेटिव में मैग्नीट्यूड में अगर कोई वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब एनर्जी वैल्यू इज इंक्रीजिंग, है ना. -5 एंड -2, व्हिच वन इज बेटर, बिगर? तो -2 है ना. So this is minus 13.6 divided by 25, so that is going to be minus 0.5 approximately. ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई. तो इनके डिफरेंसेस भी हमें याद रखने हैं. ठीक है. So what is going to be the value over here? The value is 10.2 electron volt, है ना. Or how you are going to calculate over here difference? So we will say delta E is nothing but E, let's say over here, right? We are going to say E higher minus E lower. ठीक है. Now we can write delta E is nothing but E2 minus E1, where E2 is nothing but energy of higher state, and E1 is nothing but energy of lower state. So this is 10.2. What is going to be this value? This is 12.09. This is 12.75. Going to be 13.06. This value is 1.89. This value is 2.55. And this value is going to be, let's say, 2.86. ठीक है. तो ये अलग अलग वैल्यूज आपको याद रखनी है, राइट. कुछ और वैल्यूज भी लिख सकते हैं. लेट्स से ओवर हियर वी कैन राइट दिस वैल्यू 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
ठीक है, यहां तक हमने शायद लास्ट क्लास में बता दिया था, राइट। अब ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए। किसी भी लेट्स से एलिमेंट के लिए, किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए लिखना है तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। This is for hydrogen, है ना. So if we are going to write for any, let's say, species, then we just have to multiply it by z², कहीं पे भी. Anyway, now we are talking about absorption. Absorption of electron and excitation of, sorry, absorption of photon. Photon and excitation of electron. So I have told you 3 scenarios. I have told you one scenario is like this. In one scenario, electron is over here. Let's say this is first scenario, second, and third. And here the photon is falling off 10.1 electron volt. So what will happen? No excitation. ठीक है? This is the electron. Here photon is falling 10.2 electron volt. What will happen? Electron will jump from n equals to 1 to n equals to 2. Now, electron will excite. And then I have told you, if the photon is falling over here is 10.3, which is more than 10.2, then also no excitation. The next excitation will happen when you are going to put 12.09. ठीक है? Right? So that means electron is going to be selectively absorbing photon. Electron will absorbs, है ना, absorbs selectively, absorb photons selectively, ठीक है, and excite to higher energy state. ठीक है, तो भाई ये 3 सिनेरियो है, इसमें यहाँ पे नो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट इफ यू आर गोइंग टू पुट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ यू आर गोइंग टू गिव 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आल्सो नो एक्साइटेशन. सही है. मैं भाई लिख लो यहाँ तक. एनी डाउट टिल हियर? चलो आगे सब लोग. अब चलो पूछ लेते हैं, रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो? ऋषभ रिवाइज करके आए हो? आज ऋषभ इज नॉट देयर. चलो राज सिंह, राज सिंह रिवाइज करके आए हो? हेलो. हेलो. हाँ बेटा, रिवाइज करके आए हो? यस सर. होमवर्क क्या दिया था? कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे ना? तो होमवर्क किया नहीं दिया था आपने? नहीं दिया था होमवर्क? नहीं सर. अच्छा ठीक है. ठीक है ठीक है.
बोलो भाई डाउट किसको क्या है? सर आवाज आ रही है? हम्म सर हाइड्रोजन में तो सर एक ही शेल होता है, तो दूसरे शेल में सर कैसे जंप होता है वो नहीं समझ रहा। एक्चुअली हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन n=1 में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन आगे कहीं पे जा नहीं सकता है। जहां जहां पे उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई आएगी, वो सारी स्टेशनरी स्टेट होगी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन वहां पे जा सकता है, वहां पे मतलब स्टेबल है। तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और फिर वो जंप करने के बाद स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या है? फोटॉन्स देते हैं। कैसे? जब वो वापस आएंगे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है ये फिर वापस भी आएगा, है ना? हाउ मच टाइम इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन हायर स्टेट? So it is said around 10⁻⁸ second only the electron is going to be in higher state. तो अगर आपने उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, ऊपर गया, ऊपर जाके फिर वो नीचे आएगा। ओके, ठीक है? So this is the possibility कि कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। सर तो अभी जिसने ये जो डाउट पूछा हुआ है, हेलो। हाँ सर हेलो। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा था कि हाइड्रोजन एटम है जैसा भी आपने बताया उस हिसाब से तो फिर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा, बस उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम ज्यादा हो सकता है ना? यस, उसका किसका? इलेक्ट्रॉन का? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, हाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरली n=1 में रहता है। ठीक है? हम्म बट इफ यू आर गोइंग टू गिव द एनर्जी देन इट कैन जम्प टू अनदर हायर एनर्जी स्टेट। जैसे आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना? हम्म सो 2,8,1, राइट? हम्म ये पढ़ा है ना? हम्म तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में लेट्स से 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? ठीक है। तो हर एटम में ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स होते ही है। ये तो ये है कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी फिलिंग कैसे होगी। इसका मतलब ये नहीं कि सेल सेल नहीं है। से हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक n=1 में है, लेकिन 2, 3, 4 सब प्रेजेंट है, राइट? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा सकता है। और सर मेरे को दूसरा पूछना था, कल के दिन आपने ये बताया था अगर उसका इलेक्ट्रॉन को अगर 10.3 eV से ज्यादा इतना पावर पावर ये फोटोन मिला, फोटोन अब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये आपने बताया था कि ये एक्साइट होगा और मतलब n=2 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ऐसा अलग अलग लेवल्स होते हैं प्रेजेंट। तो मैंने बोला था कि वहां नहीं जाएगा क्योंकि वो अनस्टेबल एनर्जी स्टेट होगा। तो वो वहीं रहेगा जो जहां पर वो हाँ, पोजीशन तो है। वो अपनी स्टेबल से स्टेबल में जा सकते हैं। स्टेशनरी स्टेट, ये जो n=1, 2, 3 एक है, ये सब स्टेशनरी स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज इट्स एनर्जी। यही तो मैक्सवेल ने जो बात बोली थी, इसको कैसे उसने, बोर ने कहा कि जो भाई रदरफोर्ड का मॉडल कैंसिल हो गया था, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही एनर्जी स्टेट्स में हो, कुछ ही ऑर्बिट्स में होगा, राइट? और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो 10.3 पे जो है वो हमें कांस्टेंट एनर्जी वाली स्टेट नहीं मिलेगी, होगी अनस्टेबल वाली स्टेट, तो वहां नहीं जाएगा। ओके सर। ओके, हम्म चलो। और कौन है भाई, से पूछ सकते हैं। इशिका, पढ़ के आए हो बेटा? इशिका अनम, रेज योर हैंड। हेलो, यस सर। पढ़ के आए हो बेटा आप? यस सर। अच्छा, तो बताओ बोर मॉडल जो है ना वो किन स्पीसीज पे एप्लीकेबल होता है? सॉरी सर। मतलब बोर मॉडल हम कहाँ लगा सकते हैं? वेयर वी कैन अप्लाई बोर मॉडल? We can apply Bohr model where in the nucleus and the atom. इन द न्यूक्लियस एंड इन द एटम मतलब?
applicable in the electronic species that is given in the atom and the nucleus between centripetal force and the centrifugal No. force. See, I am not saying कि explain me the Bohr model. I am saying कि बताओ सोडियम एटम पे बोर मॉडल लगा सकते हैं? मतलब जो ये रिजल्ट हमें मिले हैं, ये सारे रिजल्ट सोडियम एटम के लिए सही हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए सही है, ये बात हमें पता है। क्या सोडियम एटम के लिए भी सही है? No, it is only applicable up to unielectronic species. यूनिइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो यहाँ आंसर क्या था? यूनिइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आपको बाद में चमका है ना, रिवीजन अच्छा वाला नहीं है। ठीक है, चलो गुड। ठीक है, चलो आगे चलो। यस, हेलो सर। हाँ आकाश। हाँ सर, आपने जो अभी इसके पहले जो एक डाउट आपने क्लियर किया कि हाइड्रोजन एटम में भी शेल्स होते हैं, मतलब सभी एटम्स में शेल्स होते हैं, पर फिर हम ऐसे वो बोल सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन एटम की जो साइज है वो छोटी रहती है, तो फिर वो केस में इतने सारे शेल्स एडजस्ट कैसे होते हैं वो एटम के अंदर? क्यों नहीं एडजस्ट होंगे? छोटी का मतलब क्या है? सब कुछ छोटा है ना वहाँ तो। हाँ भाई इलेक्ट्रॉन है वो भी छोटे, सब छोटा है, मतलब वो रीजन नहीं हो सकता है। तो मतलब अच्छा, एक और बात जैसे हम बोल रहे हैं एटम की जो साइज है ना, साइज पे बात आती है, तो एटम की एग्जैक्ट साइज हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वी आर गोइंग टू डू इन पीरियोडिक टेबल। तो एटम की एग्जैक्ट साइज इसलिए नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि अभी तो चल रहा है क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स के मॉडल से हमने बताया है। व्हाट हैपेंस इज, सबने अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ऐसा सुना है कुछ? ये सुनो आकाश। सर नहीं सुना है। नहीं सुना है, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती है ना। ये दिस इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लेटर स्टेज, ओनली द प्रोबेबिलिटी वी कैन से, है ना। प्रोबेबिलिटी है कि मतलब ये मोस्टली यहाँ रहेगा, वी कैन नॉट से कि हर बार यहाँ रहेगा। ओके, so that's why you don't know the exact position of electron and that's why you don't know the boundary. ओके सर, ये आगे आएगा, ठीक है। तो फिर रेडियस कैसे बताते हैं? रेडियस बताते हैं बॉन्डिंग के हिसाब से। मतलब ये अज्यूम करते हैं कि जैसे मान लो ये बॉन्ड बना रहा है H2, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस नाप लेते हैं, राइट। और हम कहते हैं कि इसकी जो आधी हो जाएगी वही इसकी रेडियस हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकली कोवेलेंट रेडियाई, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। वी डोंट नो दिस वन, है ना, हमें ये नहीं पता है, बट हमने क्या किया, हमने बोला ये हमें पता है तो हमने इसके हिसाब से लिख लिया। न्यूक्लियस तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारा मास होता है, राइट, ऑल द मास इज प्रेजेंट, so we can see the nucleus position and because of that we can say what is going to be radii। तो रेडियाई ऐसे निकलती है, इसलिए एटम का साइज एग्जैक्ट साइज नहीं पता है ना, रेंज पता है कि मतलब इतना बड़ा हो सकता है ऐसा। अच्छा, ये तो वही हो गई जो तुमने एटॉमिक साइज के बारे में बोल रहे हो। दूसरी बात, बहुत सारी एनर्जी सेल्स रहती हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, एक्साइट होता है। जैसे फ्लोरोसेंट में क्या बताया था, फ्लोरोसेंस बताया था क्या, फॉस्फोरेसेंस फ्लोरोसेंस तो समझाया था क्लास में, हाँ सर बताया, है ना। तो उसमें बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, राइट। हाँ तो वहां पे भी हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो नीचे आएगा। हाँ सर, तो ऐसे ऐसे एनर्जी सेल्स होते हैं। हाँ सर समझ गए। कोई बात नहीं, फ्लोरोसेंस कुछ नहीं है, राइट। व्हाट विल हैपन इज कि जो भी फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं उनमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचता है और फिर वहां पे
जितनी एक्सपेक्टेड है 10 to power -8 उससे थोड़ा ज्यादा रुकता है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा देर रुकता है उसमें। एक ऐसा टेम्परेरी स्टेट और होती है ना उसके जस्ट नीचे, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे रुकता है, ठीक है, उसमें रुकता है और फिर थोड़ी देर बाद फिर नीचे आना चालू करता है। इसीलिए क्या होता है, जब लाइट गिरती है उसके बाद एकदम से लाइट ऑफ कर दो तो वो उसके थोड़ी देर बाद तक ग्लो करता रहता है। क्यों ग्लो करता रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में है ना कहीं पे ज्यादा देर के लिए स्टे कर गया है, ठीक है। ये जिनको नहीं पता है सर्च फ्लोरोसेंस है ना, और थोड़ा उसका इधर उधर ढूंढ के पढ़ो तो अच्छी विजुअलाइजेशन होगा। चलते हैं आगे। तो कुल मिला के देखो हायर एनर्जी स्टेट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इमिशन की। emission of photon and de-excitation. ठीक है, emission of photon and de-excitation of electron. अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन only stay around 10 to the power -8 second in excited state. After that, electron will de-excite and eventually reach to ground state. ग्राउंड स्टेट का मतलब है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, लेट्स से राइट, हम नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट सिनेरियोस है ना, अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इतना लिख लो पहले। Vinay, what is your doubt? Sadhana? Sir, what if energy is provided in constantly? मतलब Sir, कि मतलब अगर सेम एनर्जी बार बार हम प्रोवाइड करते रहे, हाँ तो कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पहले जंप करेगा, फिर बाद में नीचे आएगा, फिर जंप करेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ही। अच्छा, मतलब नीचे आएगा ही वो। हाँ, नीचे तो आएगा ही। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। हाँ, एक और है, एक पॉसिबिलिटी है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी है, अब वो ऑलरेडी एक्साइटेड है। अगर मान लो एक्साइटेड वाले पे ही हिट कर जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस, है ना, तो फिर क्या होगा, और एक्साइट हो जाएगा, और इस वाले केस में वो क्या हो जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा। ओके ओके, है ना, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो -13.6 से, है ना, व्हाट यू डिड इज -13.6 से आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, देन इट हैज रीच्ड टू -3.4, फिर 10.2 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दोगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे प्लस से, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें, राइट, तो कितना हो जाएगा 4, 6.2, 6.8। तो अब 6.8 की प्लस 6.8 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होगी, राइट। अगर इस पे एक और 10.2 फोटोन चला गया तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना, प्लस 6.8 जब 0 हो जाती है तब वो बाहर निकल जाता है, राइट, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, राइट। तो ये 6.8 एनर्जी क्या होगी फिर सोचो, है ना। मान लो किसी को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी which will come to that point that is called ionization energy, ठीक है, आपने बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो एनर्जी रह जाएगी वो किसके फॉर्म में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वो किस फॉर्म में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यही तो हो रहा था कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे
आपने हायर पोटेंशियल लगा रखा है तो ये क्या हुआ, उसके कारण मूव कर रहे हैं और उनके पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, बाहर निकल रहे थे ना, आपने इतनी ज्यादा एनर्जी दे दी इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो अंदर वाले थे वो भी बाहर निकल निकल के से मूव कर रहे हैं। क्लियर है भाई ये सारी बातें? कैन यू रिलेट, यस और नो? Yes, sir. चलो सिद्ध, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल वैलेंसी। आप इधर से उधर मत भाग जाओ, है ना, अभी विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। आपका डाउट अगर है तो बाद में बताएंगे, ठीक है। होता क्या है कि बहुत सारी चीजें बताने का भी नुकसान है। कुछ बच्चों को तो अच्छा समझ में आता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इधर उधर की बातों से। सो विल स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन कैन ओनली स्टे, ठीक है, ये बात हो गई। तो अब व्हाट कैन बी द सिनेरियो? सिनेरियो इज कैन बी लाइक दिस। अरे रुको भाई, चिंतन। So let's say I will write two scenarios, ठीक है। So there are numerous, let's say atom, hydrogen atom, और मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो n equals to 3 में है। let's say electron is already in n equals to 3। तो एक सिनेरियो तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन सीधे n equals to 1 में चला जाए। दिस इज वन सिनेरियो, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि ये पहले n equals to 2 में जाए और फिर n equals to 2 से n equals to 1 में जाए। दोनों पॉसिबल। कुछ एटम्स में ये होगा, कुछ एटम्स में ये होगा, ठीक है, राइट। एक सैंपल है, गैसेस सैंपल, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन के पास दोनों चॉइसेस हैं, या तो वो डी एक्साइट होकर डायरेक्टली चला जाए। अगर अच्छा वो डायरेक्टली जाएगा, यहाँ पे इसकी एनर्जी थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसको अपनी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एक 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकालना पड़ेगा, है ना। दिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉर फोटोन। तो इतना ये एनर्जी का फोटोन निकल जाएगा। व्हाट विल हैपन हियर, है ना, व्हाट विल हैपन हियर। सो इन दिस केस ये पहले n equals to 3 से n equals to 2 में आया, कितनी एनर्जी का फोटोन छोड़ा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहां से यहां गया, 2 से 1 में गया तो कितना छोड़ा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू कैन सी over here we are going to get 2 photons, here we are getting 1 photon। so both, है ना, first and second possibility, both first and second are possible, है ना, both cases possible। तो emission में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे वो टूट टूट के भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। Now let's take the doubt कि किसी ने हाथ उठाया था, चिंतन, यस, कहाँ है चिंतन? बोलो बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन जंप और डी एक्साइटेशन है वो सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में होता है कि सबके लिए पॉसिबल है? सब में होता है ये इसीलिए तो बोर मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझो, ये जो अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें हमने सिंपल चीजों से स्टार्टिंग करी, है ना। वी वांट टू चेक कि भाई सिंपल केसेस में क्या होता था। तो हाइड्रोजन एटम लिया भाई, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो बातें आई निकल के, राइट, वो बातें आगे वाले केसेस में भी, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में भी वैलिड थी कि एनर्जी स्टेट्स होती हैं, राइट। तो इसलिए हम बोर मॉडल पढ़ रहे हैं। पता नहीं कितने साइंटिस्ट ने कितनी डिस्कवरी करी होगी, सब थोड़े ना पढ़ रहे हैं। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर फोटोन गिर रहा है, तो n1 से n2 जाएगा वो। तो मान लो 100 एटम है, तो 100 एटम में एक ही पॉसिबिलिटी होगी, n equals to 1 से n equals to 2 में जाएगा।
अब मान लो इसी तरह से 12.09 का दिया मैंने, अगर मैंने एनर्जी 12.09 की दी तो वो कहाँ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 से 3 में चला जाएगा। सर तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मतलब 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो 20.4 तो एक पे फोटोन की एनर्जी है ना 20.4 एक फोटोन। सी व्हाट हैपेंस इज गुड क्वेश्चन कि ये जो फोटॉन्स हैं है ना, ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, मतलब जिससे टकराएंगे उसको दे देंगे एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा एक टाइम पे, 10.2 एक टाइम पे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एक्साइट हो गया। अब इसके बाद फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर क्वेश्चन में दे रखा नहीं नहीं अभी उसने फर्दर एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो फिर हम बोलेंगे कि फर्दर एक्साइट हो जाएगा। सर तो एक फोटोन डिवाइड मतलब आपस में डिवाइड होके 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना? नहीं नहीं, एक फोटोन क्या बोल रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो 20.4 10.2 एक में 10.2 दूसरे में। नहीं नहीं, ये नहीं होगा ना, एक फोटोन आपस में अपने आप थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। तो ये जहां पे भी जाएगा दैट इज राइट, दैट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। सर 20.4 तो कुछ भी एक्साइटेशन नहीं देगा क्योंकि वो तो कोई है भी नहीं स्पेसिफिक वैल्यू। 20.4 में तो फिर बाहर ही निकल गया ना। सर आपने बोला था ना स्पेसिफिक वैल्यू है स्टेप बाय स्टेप में। स्पेसिफिक वैल्यू 13.6 तक है ना, उसके ऊपर किधर भी उड़ जाएगा। उसके ऊपर देंगे तो वो एटम से बाहर ही निकल जाएगा भाई। -13.6 यहाँ दे रखा है, आपने +13.6 दे दिया, क्या कहाँ पहुंचा, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब बाउंड्री बाहर ही निकल गया। ठीक है, अब आप 13.7 दोगे तो भी बाहर निकल जाएगा, 13.8 दोगे तो भी बाहर निकल जाएगा, है ना। ये सब वैल्यू मिलके क्या हो जाएंगी, 0.4 पहुंच जाएगी, 0.5, फिर जितना भी बढ़ाते जाओ। तो एटम के बाहर है ना, हाइड्रोजन एटम के बाहर। तो बाहर गया तो अंदर नहीं आ सकता ना वापस। हाँ, बाहर गया तो फिर अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, और नो सर। चलो भाई आगे चलते हैं। तो बाहर जब जैसे निकलता है ना, तो हम उसे एक्साइट करा, मतलब क्या कराते हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं आ सकता। अभी मैं इस पे बात पे सोच रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, है ना, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये अब ये क्या बन गया, कैटायन बन गया, तो ये क्या करेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब दिस देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कहीं और भी जा सकता है, राइट। जैसे मान लो अभी अब तुम्हें एक बैटरी वाला सेल बैटरी वाला केस बताते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जिंक इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Zn2+, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, तो Zn से कॉपर में चले गए, राइट। फिर क्या हुआ, कहीं पे Cu2+ था, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए बाहर से, है ना, एब्जॉर्ब किए, तभी जाके वहां पे रिडक्शन हुआ। सो द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि वापस भी आ जाए, ऐसा नहीं है। बट वो थोड़ा अभी हम उस तरह डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं कि यू जस्ट थिंक। अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अगर मैंने कोई चार्ज लगा रखा है, कोई इलेक्ट्रोड लगा रखा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा उसकी तरफ। यही कैथोड रे ट्यूब में होता था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इमिशन के बाद, फिर उसके बाद अगर आपने हायर पोटेंशियल लगा दिया तो उसकी तरफ जाएगा। ठीक है चिंतन, ये बात समझ में आ गई, चले आगे। हाँ सर। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अभी ये जो अपनी एटमॉस्फेयर में कभी कभी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, चार्ज आ जाता है अपनी बॉडी पे, राइट। वो कहाँ से आता है, वो जो भी मैटर है अपने अराउंड सराउंडिंग में उसी से आ रहा है, राइट। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज आ गया, जनरेट हो गया कहीं पे, किसी पे ज्यादा पे आ गया, तो कहीं पे पॉजिटिव भी बना होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये हाउ इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड,
आपस में अपने आप न्यूट्रलाइज क्या कैसे होगा? जैसे मान लो एयर के पार्टिकल्स हैं, किसी से टकरा रहे हैं, राइट? तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकराए तो न्यूट्रल हो गए फिर से। सो दिस इज, नहीं तो एक और रीजन होता है कि हम बोलते हैं अर्थ है, अर्थ चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है सारा। इट्स अ वेरी गुड सिंक ऑफ लेट्स से चार्ज। तो अगर आप जैसे कभी आपने देखा होगा, आपको जो कभी थोड़ा बहुत करंट कभी लगता है कुछ छूने वूने में, तभी लग रहा है क्योंकि आप बहुत टाइम से जैसे चप्पल पहने हो, तो आपका जो स्टैटिक चार्ज आपकी बॉडी में डेवलप हुआ वो अर्थ तक जा ही नहीं पाया, ठीक है? देन यू आर गोइंग टू टच समथिंग, तो फिर वो स्पार्क आता है, ठीक। एनीवे, सो दिस इज, तो अभी यहाँ पे ये वाले केसेस पॉसिबल हैं एंड ओके, चलते हैं आगे। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। लेट्स से ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? हाँ भाई, एनी डाउट किसी को? कोई याद रहा था? चले आगे। ग्राउंड स्टेट क्या है? n इक्वल्स टू 1 है ना। दिस इज ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ये बात है। नाउ फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, for unielectronic species n equals to 1 is ground state। कहीं पे लिखा हो ग्राउंड स्टेट, we will understand that is n equals to 1। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम के लिए, for lithium is nothing but 3 है ना। नोट में लिख सकते हैं ना। For lithium electronic configuration is 2,1, ठीक है। So what is the ground state for third electron? So for third electron the ground state is going to be n equals to 2। भाई ये यहीं ऑलरेडी, भाई अभी फिर इससे ध्यान से सुनना, यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में ही आके रहेगा ना, यही तो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। बट जब हमने 2 यहाँ भर दिया, अब थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? इसमें तो आ नहीं सकता n इक्वल्स टू 1 में, राइट? बिकॉज n इक्वल्स टू 1 में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो बाहर वाला सेल है उसके लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स n इक्वल्स टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, है ना। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के लिए वही वाला होगा। जैसे अगर मैंने लिखा सोडियम तो 2,8,1, तो उसके लिए कौन सी हो गई है? थर्ड, है ना। थर्ड स्टेट इज गोइंग टू बी ग्राउंड स्टेट, सो बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। तो फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन ground state will be n equals to 2, ठीक है। याद रहेगा ये बात, ये नोट में डाल दिया हमने। So that's why you can say lowest energy state, that is the better term। भैया इलेक्ट्रॉन देखो, कोई भी चीज है, एक और बात याद रख लो, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, हाउ दीज आर प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बताओ, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बताओ भाई, कोई दो ऑप्शन दिए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, राइट। तो अब तुम ये ऐसे समझ सकते हो कि भाई तुमने खाना खा लिया, नाउ यू आर चार्ज एनर्जी, अब तुम क्या चुपचाप बैठोगे? और यू विल डू सम एक्टिविटी और समथिंग, सो यू आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटी, यू आर नॉट स्टेबल दैट टाइम, कुछ कर रहे हो, है ना। मोर एनर्जी, मोर अनस्टेबल,
लेस एनर्जी चुपचाप थक हार के बैठ के चुपचाप सो जाओगे, कुछ नहीं करोगे, राइट? So that's the mind, that's the, let's say, concept you can fit in your mind. More energy, reactive, you will do something, action करोगे. Less energy, तो आप चुपचाप बैठ जाओगे, है ना, सो जाओगे, स्टेबल. सो लोएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेबल होगा. हायर एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, वहां पे कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होगा. जितनी ज्यादा हायर एनर्जी उतना लेस स्टेबल. क्या शुभम, क्या है ये डाउट? बट सर यू सेड द आउटर मोस्ट cell will be the ground state. You have written in lithium to have ground state n equals to 1 while its outermost cell has only 1. तो सेल का नंबर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लिख रहे हैं. स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, विच सेल नंबर. शुभम बरूचा, समझ में आ रहा है ये? व्हाट वी आर, हाँ, सेल का नंबर लिख रहे हैं भाई, ये n equals to 2. ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज k shell, दिस इज kl, l के लिए n equals to 2. तो अभी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्टेज के लिए बात करें बेटा. श्रेय बताओ क्या डाउट है, हाथ उठाओ. Excuse me, sir. हम्म. Can you hear me? हम्म. Yes, I wanted to ask about the multi-electronic species, the ground level state. I didn't got that. So can you re-explain? ग्राउंड स्टेट का मतलब यही है कि जो भी आपका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्या सेल है, क्या सेल नंबर है, दैट इज गोइंग टू बी ग्राउंड स्टेट. Okay, sir. ठीक है. So for lithium, it would जो be भी आप 2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, जैसे आप क्रोमियम लिख रहे हो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है? नहीं, चलो, No, sir. क्रोमियम नहीं पता है ना? No. ठीक है. तो जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, अच्छे, एल्यूमिनियम इज 2,8,3, राइट, फॉर यू, Yeah. है ना? तो ये अब ये कौन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले में है, 1 में है, 2 में है या 3 में है? 3. 3. तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गई? 3. 3. समझ आया? Yeah. Thank you, sir. चलो भाई, ग्राउंड स्टेट समझ में आ गई सबको, बहुत अच्छी बात है. अब चलते हैं एक्साइटेड स्टेट. तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया? हायर एनर्जी स्टेट, है ना? अपार्ट फ्रॉम n equals to 1, all states are higher, है ना, एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. तो अब इनमें थोड़ा नंबरिंग, नेमिंग थोड़ा सा याद रखना है. सो लेट्स से अगर मान लो ये n equals to 1 है, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट. So if somewhere it is written as n equals to 2, then what will happen? This is going to be n equals to 2 is nothing but first excited state. ठीक है, ये बात समझ में आ रही? n equals to 2, n equals to 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ऐसे if I have write, let's say generally if I am going to write n equals to m, 3 है तो सेकेंड है, 2 है तो 1 है, तो m होगा तो m minus 1 एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, एक छोटा होता जाएगा. ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं. समझ में आ रही है ये बात? चलते हैं, ये लिख लो.
क्या दिक्कत है? जैसे आपने बोला apart from n equals to 1 all other shells are excited state. क्या? सर n is equal to 1 ग्राउंड स्टेट आपने बोला ना इसमें, लेकिन इसमें लिथियम और एल्यूमिनियम में तो 2 नहीं, और अब 3 हम था। लिथियम और एल्यूमिनियम की अभी बात नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। लिथियम में क्या होगा, सेकंड हुआ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, n equals to 3 and so on। सर लेकिन 3 तो है ही नहीं ना उसमें, क्या नहीं है? 3 है ही नहीं ना उसमें। अरे अभी तो मैंने बताया था, आकाश ने पूछा था, हर एटम में एनर्जी स्टेट्स होते हैं, 3, 4 सब हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी एक्साइटेशन वाला वो फ्लोरोसेंस क्यों समझाया था, रिकॉल हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? तो सर जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो आ जाता है वो क्या रहेगा? ग्राउंड स्टेट। हाँ, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ग्राउंड, इट इज गोइंग टू बी ग्राउंड स्टेट। उससे एक आगे वाली स्टेट क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। अभी तो ये अभी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीच पे भी हम एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें और आगे बातें आने वाली है, ठीक है? तो विल टॉक अबाउट दैट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, है ना? अब नेक्स्ट टर्म आता है आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove outermost cell electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom or ion, ठीक है? So minimum energy required to remove outermost electron from isolated gases atom or ion। isolated gas outermost cell electron का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, from ground state। in this, let's say with respect to this is nothing but outermost cell electron का मतलब क्या होगा, है ना, remove electron from ground state, or you can say minimum energy required to remove, है ना, electron from ground state। in isolated gaseous एटम और आयन, ठीक है? तो अभी हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये मोर जनरल डेफिनेशन है, ठीक है? तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इन आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयन। देख लेते हैं, यहाँ पे कोई n इक्वल टू 1 है, उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 z² बाय z²। n स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। कहाँ भेजना है आपको, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब है जस्ट बाहर निकाल देना है, जस्ट बाहर निकालने का मतलब है E इक्वल टू 0, दैट इज द मिनिमम, है ना, कि आपको जस्ट बाहर निकाल देना है। तो हाउ मच एनर्जी यू हैव टू गिव, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी आप देंगे, हाउ मच एनर्जी यू आर गोइंग टू गिव, you are going to give plus 13.6 electron volt, sorry z² electron volt, right? Then what will happen, this electron is going to excite to here, तो हम बोल देंगे बाहर निकल गया। इतनी आसान में आ रही, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, राइट? व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू?
hence ionization energy is nothing but 13.6 Z square इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 13.6। हीलियम प्लस आयन के लिए कितना हो जाएगा? हीलियम प्लस आयन के लिए, अच्छा ये बात याद रखना है, ये सब बोर मॉडल में चल रहा है ना, हीलियम के लिए नहीं बताने लग जाएंगे, हीलियम प्लस आयन के लिए निकलेगा। तो हीलियम प्लस आयन के लिए कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 4। लिथियम 2 प्लस आयन के लिए कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 9, ऐसे करके लिख सकते हैं। कुछ वैल्यू याद रख लेते हैं। हेंस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ionization energy of helium plus ion, that is 54.4 electron volt, ionization energy of lithium 2 plus ion, that is nothing but 122.4 electron volt। तो ये सब वैल्यूज हैं, ये याद रखना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? चलो, आयनाइजेशन के बाद एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, so you just remember that energy is nothing but charge into है ना potential difference। ठीक है, ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, विच वी हैव सीन। एनर्जी की जैसे यूनिट हमने लिखी थी जूल, तो 1 जूल इज नथिंग बट 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, है ना। सो जूल इज नथिंग बट कूलम इंटू वोल्ट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वहीं से ये टर्म आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज ओवर हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम हेंस दिस इज कॉमन कॉन्सेप्ट, हेंस हम अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अभी हमने जो आयनाइजेशन एनर्जी लिखी वो क्या लिखी, 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, इट इज नथिंग बट 13.6 Z स्क्वायर वोल्ट, है ना। कुछ नहीं है यहाँ पे, हमने कुछ नहीं किया है, राइट। जस्ट रिमेंबर कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सेम ही रहने वाली है। द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू चेंज दैट इज यूनिट। क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि कई जगह आयनाइजेशन एनर्जी ना देके इनडायरेक्टली दे आर गोइंग टू गिव यू आयनाइजेशन पोटेंशियल। Z, if there are 3 cell 2, 8, 1, so any electron in L shell will have ground state equals to n equals to 2. So we are not talking about, हमेशा हम किसकी बात करते हैं, Z, though I don't want to get into multi electronics right now, but ठीक है, चलो हाथ रहो ना, Z। हाँ ये सर। बताओ, जब जब हम किसी मेटल की या किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। बस तो कहीं पे भी अगर पहले इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ कुछ होगा तो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लास्ट वाला, जो लास्ट सेल में। ग्राउंड स्टेट किसके हिसाब से डिफाइन होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। ओके ठीक।
ये -13.6 नहीं होगा, -13.6 तो उसके पास खुद से एनर्जी है, उसको एनर्जी दोगे तभी तो 0 होगी। Delta E is nothing but E infinite minus E1, let's say. What will happen? E infinite is 0 minus of 13.6 Z square electron volt. क्या आया? ऐसे देख लो, है ना? So ये डेल्टा E नहीं है, कुछ नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है कि we are talking about for single, let's say, atom, ठीक है, गैसेस एटम। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं हर एनर्जी के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हो Na solid is going to give you Na plus aqueous plus इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। यहाँ पे सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये एक्वस में पहुंच गया और ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट दैट इज नॉट आयनाइजेशन, दैट इज समथिंग मोर देन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन भी है बट कुछ और भी हो रहा है। तो टू डिफाइन, लेट्स से, these energy we are talking about, always talking about gaseous atoms or ions, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है। आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ गया? तो अब चलते हैं, राइट। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद एक और बात, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन समझने। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल यही होता है। तो डेफिनेशन क्या है? सो मिनिमम, लेट्स से मिनिमम potential difference, है ना, applied to accelerate electron from rest so that its kinetic energy will be equals to ionization energy. In electric field. या तो अब ये तो है एग्जैक्ट डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है वो हम समझा देते हैं। So we will go back to cathode ray tube experiment. From rest से का मतलब है इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके बाहर है ना। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला है, ठीक है। So electron is at rest, so this is going to be V equals to 0. अब आपने क्या किया? What you have attached is कि you have added, this is the potential difference you have added, ionization potential, which is let's say x volt. let's say ये लिखा हुआ है x volt. x volt का मतलब क्या है? कि इन और इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ये दोनों प्लेट ऐसे जुड़ी हुई है ना, इससे इन और इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x वोल्ट का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, v वेलोसिटी 0 है, दैट इज एट रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो गया? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी, जो अभी हमने यहाँ पे बताया एनर्जी का, राइट। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? द पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट ओवर हियर जो भी वोल्टेज हम दे रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दो, आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज की बात कर लो, ठीक है। अब x वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू से कि मैंने इनके बीच में ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट होगा इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों एक्सेलरेट होगा? क्योंकि हमने x वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है। x वोल्ट का मतलब जैसे 10 ले लो, 20, 20 ले लो,
जैसे जैसे जितना ज्यादा पोटेंशियल हम डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतना तेजी से एक्सेलरेट होगा, राइट? ये भी बात सही है। मान लो यहाँ 10 वोल्ट था, मान लो 20 वोल्ट था, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसके हिसाब से एक्सेलरेट होगा, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन हम एक्सेलरेट करा रहे हैं। टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? है ना, दैट इज Q into V, right? So we can write total change in kinetic energy is nothing but total change in potential energy, that is potential energy में क्या है? Q, है ना, Q into V। Q की जगह आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, V की जगह क्या आ गया? आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये तो 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया आपका? E into आयनाइजेशन पोटेंशियल विच इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन है, राइट? इसको कैसे बता रहे हैं? लेकिन आपको कौन सी वाली याद रखनी है? आपको सिंपल वाली याद रखनी है ना? फॉर द सेक कि ऐसा कुछ होता है इसलिए बता दिया। आपको कौन सी याद रखनी है? पहले वाली कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ओनली द यूनिट्स विल बी डिफरेंट। काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। भाई फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखते हो ना, चेंज। अब ये तो कॉमन आपको याद रखना है, ठीक है? ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इनिशियल रेस्ट पे था। अगर इनिशियल रेस्ट पे नहीं होगा तो नहीं होगा, ये है ना डेफिनेशन, इट्स रिक्वायर्ड। जब ये 0 होगा तभी आगे ये टोटल चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन। चलते हैं आगे। जैसे हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, वैसे ही होता है एक और टर्म एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन एनर्जी। What is that excitation energy? Minimum energy to require energy required to excite electron, है ना, is called excitation energy of that state. अब यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन स्टेट अलग अलग है, इसलिए नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? तो जैसे अगर मान लो मैंने n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 तक भेज दिया, तो वॉट एवर इज द एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा? दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट?
या फिर 10.2 into z square, that's it, electron volt. This is called, and this energy is going to be called as an excitation energy of second state, क्योंकि किसमें पहुंचा ये n equals to 2 में पहुंचा है, तो this energy is nothing but, हमने इसको एक्साइट किया, कहां तक एक्साइट किया, सेकंड स्टेट तक एक्साइट किया, तो ये एनर्जी आ गई, समझ में आया। और इसके थोड़े नाम और भी हैं, that can also be called as excitation energy of फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, जो भी स्टेट का नंबर आएगा उससे एक कम क्या होगा, उसकी वो एक्साइटेड स्टेट होगी। तो n इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 फिक्स है, वहां से आप कहां तक ले जा सकते हो। एंड दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, तो और क्या बोल सकते हैं, है ना, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सो देयर आर 3 टर्म्स, सो बी केयरफुल। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, पहली बार है ना फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जा रहा है, इसलिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मान लो ये n इक्वल्स टू 3 में चला जाता है, लेट्स से अनदर एग्जांपल, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 3 में चला जाता है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12.09 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या क्या बोला जाएगा इसको, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, excitation energy of second excited state, or you can say that is second excitation। क्लियर है भाई ये बात, है ना, ये तीनों टर्म्स क्लियर है, क्या कर रहे हैं इसमें, कोई कंफ्यूजन हो तो भाई पूछते रहना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना देखना है कि कौन सी स्टेट में जा रहा है, तो उसके 3 नाम है, वो वही है, मतलब सेकंड स्टेट हो सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, या फिर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक्साइटेशन एनर्जी बोली है वैसे एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, तो आई जस्ट राइट एक्साइटेशन पोटेंशियल, will write simply, that is in short EP. So excitation energy is nothing but E into EP। ठीक है, ये E क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी, और ये EP क्या है, यहाँ लिखा हुआ है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट ले जाओ तो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 3 4 कहीं पे भी ले जाओ, दैट इज नथिंग बट एक्साइटेशन एनर्जी। चले आगे, एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी,
बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग का सिंपली मीनिंग है बाइंड करके रखना, है ना, जोड़ के रखना, राइट। तो और सेपरेशन एनर्जी का मतलब है ना, निकालना। तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन इज गोइंग टू बी जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, हमें बस मैग्नीट्यूड पे ही बात करनी है, हो सकता है कोई प्लस और माइनस में दिमाग नहीं लगाना है। सेपरेशन एनर्जी का मतलब ये है कि उसको सेपरेट करने में कितनी एनर्जी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि बाइंड किया था तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी। समझ में आ रही है बात? फिर से समझो। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुझे ये पेन है, ये तोड़ना है, मान लो लेट्स से इफ आई वांट टू ब्रेक इट, क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, तभी तो टूटेगा। तो मैं कहूँ बना होगा तो क्या होगा, कुछ मैं बोलूंगा फिर एनर्जी रिलीज हुई होगी, जस्ट उल्टा। यही होता है ना केमिकल रिएक्शंस में, है ना, एक साइड अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड एनर्जी अपोजिट साइन की होती है, राइट। हाँ ना भाई, बोलते जाओ, यस नो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बस वही है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि जब बाइंड किया होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। क्यों? क्योंकि सेपरेशन एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो जाके सेपरेट होगा, राइट। सो दैट इज द नेम फ्रॉम इटसेल्फ। अब है क्या, है ये कि आयनाइजेशन एनर्जी होता है n=1 और बाइंडिंग होता है एनी स्टेट। अगर कहीं से भी, है ना, इलेक्ट्रॉन को आप इनफाइनाइट पे भेज दो, एटम के बाहर निकाल दो कि फ्रॉम एनी स्टेट, देन इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या हमें बोलना है ना, मिनिमम एनर्जी required to remove electron from, है ना, remove electron in, है ना, in gaseous atom or ion from any state। यहाँ पे important बात क्या है, any state is called binding energy of that state। That means अगर मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन n=2 में है, the energy is nothing but -3.4 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ भेजना है? मिनिमम एनर्जी का मतलब है n=∞ पे भेजना है, n=∞ एनर्जी हो गई 0। तो ये जो एनर्जी है that is going to called as binding energy of second state। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 3.4 इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगी, सही है। ठीक है, ऐसी थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 1.51, है ना। इसीलिए मैंने बोला था एनर्जी डायग्राम याद रखना, तो वैल्यू याद रहेंगी। क्लियर है ये बात? यहाँ पे क्या है, किसी भी स्टेट से निकालने की है। अब इसमें एक और नोट भी है, एक नोट और लिखना है कि अगर कहीं पे ये लिखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट, है ना, or you can say binding energy of first state, then it is nothing but ionization energy, which is nothing but equals to 13.6 z² electron volt। तो यहाँ 3 एनर्जीज हैं, अगर हम तीनों को रिलेट करें, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, n=1 से इनफाइनाइट आयनाइजेशन एनर्जी, n=1 2 3 एनीवेयर टू इनफाइनाइट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, n=1 टू इनफाइनाइट आयनाइजेशन एनर्जी, n=1 2 3 4 फ्रॉम एनीवेयर टू इनफाइनाइट बाइंडिंग एनर्जी। इसीलिए फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी। n=1 से 2 या 3 या 4,
है ना, नॉट इनफाइनाइट, फिक्स नहीं है। n इक्वल टू 1 से 2 3 4 कहीं पे भी एक्साइटेशन एनर्जी, याद रहेगा। कंफ्यूजन है इसमें? कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? लेट्स से यस और नो, आई विल टेक अ पोल। क्लियर है ये? फिर से सुन लो, n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट आयनाइजेशन एनर्जी, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एनीवेयर टू इनफाइनाइट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, जहां से भी जा रहे हैं, ठीक है। फिर है n इक्वल्स टू 1 से कहीं पे भी, इनफाइनाइट नहीं, n इक्वल्स टू 1 से कहीं पे भी 2 3 4 5 6 कहीं पे भी, बट नॉट इनफाइनाइट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। एक बच्चे को नहीं समझ में आया, देन मैंने अभी फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू तो ये तो हो गए पॉइंट्स जो याद रखने हैं हमको, है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज पोटेंशियल और एनर्जी एनर्जी है ना। पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस, we are going to talk about, both are different let's say properties, है ना। एनर्जी अलग है और पोटेंशियल अलग है, ठीक है। अभी ये तो हमें हो गया, राइट। अब इस पे क्वेश्चंस आएंगे, राइट, थोड़े से। ठीक है, एग्जांपल है, लेट्स से कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल of lithium 2+ ion। चलो बताओ भाई, another example। चलो भाई बताओ, ये दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी फास्ट। उसके बाद क्लास खत्म, जल्दी से बता दो। ये पहला आंसर, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जल्दी से सोचो, बताओ। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल n इक्वल टू 1 2 n इक्वल टू 1 2, अरे बताओ। n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सेकेंड एक्साइटेशन एक्साइटेड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 में जाएगा 1 2 3। कितना होता है डिफरेंस? व्हाट वाज द डिफरेंस वी हैव सीन? 10.2 फिर 12.09 z स्क्वायर, सब 122.4 लिख रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी होता है n इक्वल्स टू 1 2, पहले लिखो n इक्वल्स टू 3, फिर लिखो कितना एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच में,
दैट इज नथिंग बट 12.09 z स्क्वायर। फिर लिखो 12.09 z स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 9। अब देखो ये कितना आया, 12 इंटू 9 कितना होता है 108 और 9 इंटू 9 होता है 81, तो 108.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी का नहीं आया ये। तो ये तो हो गई एनर्जी, इन्होंने पोटेंशियल पूछा है तो आया समझ में। अब बाइंडिंग एनर्जी पूछिए, दे रखी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n इक्वल्स टू 4। कितनी एनर्जी होगी n इक्वल्स टू 4 की, फिर से लिखो माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर विच इज गिवन एज 13.6 है ना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी अगर 13.6 है इसका मतलब क्या है, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक जाने के लिए इसको 13.6 एनर्जी देनी पड़ी होगी। इसका मतलब क्या है, इस स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस 13.6। सही है बात या नहीं, माइनस 13.6 में 13.6 दोगे तभी तो जीरो बनेगा, राइट। तो दिस इज द हिंट। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुमसे ये नहीं हुआ तो ये तो होता ही नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ। n इक्वल्स टू 4 में एनर्जी कितनी हो गई माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो n कितना है 4 का स्क्वायर 16। कह रहे हैं ये इसको अगर हम 13.6 देंगे तो ये जीरो मतलब है ना बाहर निकल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ दैट स्टेट इज नथिंग बट माइनस 13.6। तो ये कट गया, z स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो z की वैल्यू आ गई 4। जैसे z की वैल्यू 4 आ गई तो कैन यू कैलकुलेट कि n इक्वल्स टू 1 से निकालेंगे तो कितना होगा। सो दैट इज नथिंग बट माइनस 13.6 16 1 है ना, n स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। ये इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी है ना, तभी तो ये जीरो होगा। कितनी एनर्जी हो गई है 16 से देख लो, 16 इंटू 6 96, 16 इंटू 3 48 और 9 57, 16 इंटू 1 दैट्स 16 और 5 तो ये आ गया 217.6 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, क्या कर रहे हैं, कितना समझ में आ गया, सही यस नो। चलो ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक हमने होमवर्क बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। आई विल टेल यू कि अभी कहाँ तक करना है, थोड़ा होमवर्क करना स्टार्ट करना है, राइट। एक मिनट, वेट वेट वेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 15 क्वेश्चन तक मैं पहले ही दे चुका हूँ फाउंडेशन बिल्डर में, राइट। एटॉमिक टर्म्स ये 15 हो चुके हैं। अब वी आर टॉकिंग अबाउट बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल लगभग खत्म हो गया हमारा। So you have to solve all those questions till what 36। कहाँ तक करना है, 36 तक सॉल्व करना है। ठीक है, बोर मॉडल ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अभी आपकी छुट्टी है ना, कल संडे है तो थोड़ा सा अभी होमवर्क ज्यादा कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट फाउंडेशन सब्जेक्टिव। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, फिर ये स्पेक्ट्रम हटा दो, और फिर ये बोर मॉडल करना है 17 to 29। बोर मॉडल दिख रहा है ना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड 17 to 29 यहाँ पे करने हैं, ये लिख लो। और वहां पे कहाँ तक होना चाहिए, 36 तक। कहाँ तक होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 36 तक। कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक 36। ये आपका होमवर्क 1 to 4, फिर उसके बाद है ना सब्जेक्टिव में बता रहा हूँ 1 to 4 एंड देन
16 to 29 है ना, बोर मॉडल करना है, मतलब इतना याद रखना है दिमाग में। कहाँ गया यार ये 17 to 20। चलो ओके, दैट्स इट, बाय बाय। फ्रॉम व्हाट टू 36 पूरा 36 तक करना है, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो आप 36 तक करके जाओ, ठीक है। चलो, दैट्स इट, बाय बाय।